Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. And we are here again for our next lecture of second year English. And this lecture contains all the grammatic rules. You know, previously in our 10 lectures, we tried to cover the complete book reading, question answers, and all the synonyms about lesson number 1, lesson number 2, and our lecture of grammar was also given previously. No. Uh, After completing my second lesson that was using the scientific method, I am returning to the grammar portion because it equally contains the equal marks. It also contains 50 marks, and it will be very much necessary to do that thing. Uh, I hope you will completely grasp the meaning and all the usage of the grammar rules, whatever I tell you today. Because previously, whatever I told you, मुझे याद है कि मैंने आपको 6 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रपोजिशन करवाए थे और इसके साथ मैंने आपको 20 idioms दिए थे मेरे लेक्चर नंबर 5 में. Now in lecture number 11 I'm again going to give you the same thing. First I'll show you 20 idioms on the screen, and after that we'll do some principles of preposition. So the guys, the 20 idioms. Previously, we did first 20, and now the next 20 idioms are coming to your screen. Remember that these are the idioms which have been asked frequently in the examination. I am telling you only the examination point of view, important idioms right now, and so that you can make a proper preparation with that. At this time, here in the lecture, it's not possible to give you the detailed and mean a complete series which make more than 1000 and 1200. So here are only a brief series that you will do here. So guys, I'm going to present on this appear on the screen your idioms, next 20 idioms. Okay, on your screen you have yes, 21, an oily tongue. This page is before you. An oily tongue. एक मैंने कहा था कि हमेशा idioms वो words होते हैं जिनके ट्रेडिशनल मीनिंग्स इस्तेमाल होते हैं. लेक्सिकल मीनिंग उनको वक्ती तौर पे छोड़ दिया जाता है. लेक्सिकल मीन डिक्शनरी के मीनिंग उनको नहीं देखा जाता, बल्कि उनके ट्रेडिशनल मीनिंग जो रवायती तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं. तो ऊपर वाला सबसे पहला है एन ऑयली टंग, चापलूसी करने वाली, किसी की जो है वो खुशामद करने वाली जुबान. He tries to please his boss with his oily tongue. वो अपनी चापलूसी वाली जुबान से अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड, अपना ही उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना. Selfish people always have their own axe to grind in every matter. हर मामले में जो सेल्फिश लोग हैं उनका अपना जो है वो उल्लू सीधा करते हैं, अपना ही एक मकसद होता है. Add insult to injury, जख्मों पर नमक छिड़कना, यानी कोई बंदा पहले परेशान है, कोई बात करके उसको और ज्यादा तकलीफ पहुंचाना. तो the remark added insult to my injury and I began to weep. यानी उसके रिमार्क जो है उसने मेरी तकलीफ में इजाफा किया, मैंने रोना शुरू कर दिया. Add fuel to fire, इसका मतलब भी यही है, जलती पर तेल छिड़कना. कोई लड़ाई हो रही हो, कोई मामला खराब हो और उसमें और ज्यादा कोई बात करके उसको और खराब कर देना. His speech added fuel to fire and the students went on strike. स्पीच ने जो है वो जल्दी पर तेल छिड़का, स्टूडेंट ने हड़ताल कर दी. A narrow escape, बाल बाल बचना, किसी भी हादसे वगैरह से बहुत थोड़ा सा फर्क रह जाना. She had a narrow escape from an accident yesterday.
नेक्स्ट, अ डेड लेटर, ऐसा कानून, ऐसी जुबान जो खत्म हो चुकी हो, जिनको खत्म कर दिया गया। दिस लॉ हैज बिकम अ डेड लेटर एंड देयरफॉर इज नो मोर इफेक्टिव। ये लॉ जो है वो मतरूक हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए ये ज्यादा असर अंदाज नहीं होगा। अ बर्ड्स आई व्यू, तायराना निगाह डालना, सरसरी जायजा लेना। याद रखिए, आपको इसके मीनिंग्स अपने लिए याद करने हैं, इम्तहान में आपके सिर्फ सेंटेंसेस के मार्क्स दिए जाते हैं। तो अ बर्ड्स आई व्यू, द मिनिस्टर took a bird's eye view of the flood from the aeroplane. नेक्स्ट है अ फेयर वेदर फ्रेंड, 28वां है अ फेयर वेदर फ्रेंड, एक मतलबी दोस्त। All his fair weather friends left him in lur, in difficulty. तमाम मतलबी दोस्तों ने मुश्किल में उसका साथ छोड़ दिया। आ फार क्राई, लंबा फासला, दूर। इट इज अ फार क्राई फ्रॉम फैसलाबाद टू कराची। नेक्स्ट है अ नियर मिस, यानी कामयाबी के करीब करीब आके जो है वो नाकाम हो जाना। आई एम श्योर you will succeed this time as your previous attempt was a near miss. A bed of thorns, जैसे आपने नंबर 1 किया था, अब था बेड ऑफ रोजेस, अब ये है अ बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ रोजेस था आराम आसाइश की जगह, फूलों की सेज, और बेड ऑफ थॉर्न्स होता है कांटों की सेज, यानी तकलीफ दे जगह। लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर अ लेजी पर्सन। अ ब्लू स्टॉकिंग, ये औरत के लिए इस्तेमाल होता है कि ऐसी औरत जो अदब, पढ़ी लिखी हो, अदब से दिलचस्पी रखती हो। शी इज अ ब्लू स्टॉकिंग एंड टेक्स मच इंटरेस्ट इन पोइट्री। अ बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन अहम मसला, जो आज का अहम मसला जो है कोरोना है, कोरोना वायरस है, या गुर्बत है, या बेरोजगारी है, या पॉलिटिक्स है। तो हम कहेंगे कश्मीर इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टुडे। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड्स प्ले, आसान काम, बच्चों का खेल। इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पुअर कंट्री। नेक्स्ट वर्ड इज अ जेल बर्ड। ये जेल बर्ड भी आता है, इसके साथ एक गाउल बर्ड भी है, GAOL। गाउल बर्ड या जेल बर्ड, यानी जो आदि मुजरम है, जो अक्सर जेल में रहे। He is a jailbird because he has been in jail for many times. Next है जी, a rotten egg, गंदा अंडा, यानी एक बुरा शख्स, नाकारा शख्स। Corrupt officers are rotten eggs in our country. Next है an arm's length, दूर होना, परे होना। An arm's length यानी परे रखना, वैसे होता है एट एन आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, परे रखना। यू शुड कीप सेल्फिश फ्रेंड्स एट एन आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है आ लाफिंग स्टॉक, मस्खरा, जिसको देख के हंसी आ जाए। ही इज अ लाफिंग स्टॉक ऑफ आवर कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज
foolishness. Next word 39, a fool's paradise, अहमकों की जन्नत. A practical person does not live in a fool's paradise. वो क्योंकि प्रैक्टिकल होता है वो ख्वाब या अहमकों की जन्नत में नहीं रहता. नेक्स्ट है अ वेट ब्लैंकेट, ऐसा शख्स जो दिलचस्प गुफ्तगू को बेमजा कर दे. She is a wet blanket because she always talks about herself all the time. So, students, these were next 20 idioms which makes 40. Now, we have done 40. जिसने जब मेरा 5वां लेक्चर सुना है वो भी इसके बारे में था और लेक्चर नंबर 11 है ये भी इसके बारे में है. तो अब तक आपके 40 idioms हो गए. अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेके आऊंगा आपके preposition. Previously we discussed the rules of preposition, 6 principles of preposition. तो आज मैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके सामने लेके आऊंगा. तो स्टूडेंट्स अब आपकी स्क्रीन पर जो है वो preposition शो होने वाली है तो हम उसको करेंगे इंशाल्लाह. Dear students, in my previous lectures, I explained some prepositions used because these prepositions have their portions. Mean I was discussing preposition of place. किसी जगह के लिए preposition जो इस्तेमाल होती है, ये आप इस बात को convince हो कि preposition preposition mean a word that is placed before. And it always has an object after it. So previously I told you the use of at, in, on, over, above. It was only as concerned to their place. ये preposition of place में at जो है वो छोटी जगह के लिए, in बड़ी जगह के लिए इस्तेमाल होता है, on ऐसी जगह के ऊपर होना जो नीचे वाले से टच कर रहा हो, over ऊपर होना जो नीचे सारी चीज को कवर कर ले, above जो है ये ऊपर होना जो कवर ना कर रहा हो, अंडर नीचे, मातहत भी होना नीचे भी होना, और बिलो इसका मतलब भी नीचे दर्जे में कम या नीचे होना. इसी तरह अक्रॉस था, पार होना, किसी एक चीज के आर पार होना एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे ही वॉक्ड अक्रॉस पार. फिर है थ्रू, थ्रू होता है किसी चीज के अंदर से, यानी आई एंटर द बिल्डिंग थ्रू दिस गेट, में से. यहाँ है थ्रू द डोर, थ्रू लाहौर, थ्रू पास्ट, ये सब इसके हैं. उसके बाद था आपका यस, बी साइड, ये था, इससे पहले हमने कर लिए थे. ये हमने सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कर रहे हैं, वरना एट जो है इसके लिए वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है. जब वो प्रेपोजिशन टाइम आएगी फिर मैं एट को करूंगा. और इन जो है प्रेपोजिशन ऑफ कंडीशन वो मैं उसमें करूंगा. इन का मतलब होता है में, ये ईयर वाला के भी इस्तेमाल होता है. तो वो जब होगा उसका टाइम का, फिर उसमें भी मैं दोनों सारी चीजों को डिस्कस करूंगा. अभी सिर्फ इन चीजों को मैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से डिस्कस कर रहा हूं. तो बिसाइड, बिसाइड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के हिसाब से होता है करीब, नजदीक. द चाइल्ड स्टूड बिसाइड हिज मदर, बच्चा अपनी माँ के साथ खड़ा था. अगेंस्ट, प्लेस के लिए आमने सामने होना, किसी के साथ जो है अगेंस्ट, उसके मुखालिफ सिमत चलना. जैसे पुट द पिक्चर अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के साथ, दीवार के जो है ऊपर आमने सामने इसको लगा दो. जैसे ही, ये इम्तिहान में बड़ी दफा आता है कि ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार पर झुका हुआ है. लीन अगेंस्ट, तो अगेंस्ट होता है किसी चीज के खिलाफ भी और टेक लगा कर भी. नेक्स्ट है बाय,
के नजदीक, जगह के हिसाब से होता है के नजदीक। दे वॉक बाय, यस, he is standing by his friend, he is sitting by me, वो मेरे नजदीक बैठा है, वो अपने दोस्त के करीब बैठा है, by। नेक्स्ट इज along, के साथ साथ, from one end to another, they walked along the road, वो सड़क के साथ साथ वो चले। नेक्स्ट है जी beneath, नीचे होना, ऊपर हमने बिलो अंडर पढ़ा, beneath नीचे होना किसी चीज के द, यानी किसी एक चीज के नीचे और उसका ऊपर ऐसे कनेक्शन ना हो, नीचे होना। और द बोट डिसअपीयर्ड बीनीथ द वाटर, पानी के नीचे वो गायब हो गई। अच्छा जी, इसके बाद है आपका बीनीथ के बाद जो आपका नेक्स्ट है ये प्रपोजिशन, क्योंकि हम प्रपोजिशन को इस हिसाब से करें कि उसका आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में पता चले। तो जी नेक्स्ट है जी बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है के अलावा, के अलावा। देयर आर अदर एप्लीकेशन बिसाइड्स यू, एप्लीकेंट्स बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा, तुम्हारे साथ साथ या तुम्हारे अलावा दूसरे भी हैं। फिर है जी अप होता है यूपी, अप, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट देना, ऊपर की तरफ। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा। और अपॉन, अपॉन होता है मानवी तौर पर मुतहरक चीजों के लिए, जैसे वंस अपॉन अ टाइम है, एक दफा का जिक्र है, तो अपॉन इस मायने में इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और फिर इसका प्रैक्टिकल यूज में बाद में आपको उसी तरह से डिस्कस करूंगा। आगे है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के हवाले से जैसे मैंने ऊपर एट का कहा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, तो एट टाइम में भी इस्तेमाल होता है, किसी भी वक्त को बताने के लिए कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है, उस वक्त क्या टाइम था, हम एट। आई वेंट देयर एट 7 o'clock, मैं 7 बजे वहां गया। द क्लास स्टार्ट्स एट 8:30, क्लास 8:30 पे स्टार्ट। एट किसी डेफिनेट वक्त के लिए हम एट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर है वक्त के लिहाज से बाय, एक वक्त तक, फला वक्त तक। द स्कूल विल ओपन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक स्कूल खुल जाएंगे। द फ्लोर प्राइस विल बी कंट्रोल्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई, तो बाय तक किसी चीज के होने तक। बिफोर किसी चीज से पहले, ये टाइम की है, तो किसी एक वक्त से या चीज से पहले। ही वॉज प्रेजेंट देयर बिफोर मी, मुझसे पहले वो वहां हाजिर था।
Two application had been submitted before that of me. मेरे वाली से पहले दो एप्लीकेशन वहाँ, तो बिफोर पहले, आफ्टर इसी तरह बाद, ही रीच्ड आफ्टर मी, और उसके बाद है जी टिल, तक, किसी दिए गए वक्त तक, तो टिल टुमारो, टिल द नेक्स्ट वीक, ये इसके लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल, इसको ज़रा देखिएगा, जैसे मैंने इसको यूज़ करके बताया आपके सेंटेंसेस में, आपने भी इसको यूज़ करना है, और जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपने उसको काफ़ी हद तक समझ लिया होगा, और इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको इसमें आपकी डिज़ायर्ड जो है वो नज़र आ जाएगी।